A very good morning to all my dear students. I am Shalini, your English teacher. Today I am going to explain you chapter 3rd, The Little Girl, from your book Beehive. This is a story about a little girl who is very much afraid of her father, not because he is cruel or something, just because he is not having much time for her. There was a communication gap, and he was so tall and big, like a giant. That's why the little girl was afraid. He was not having much time. He was so busy all the time. This is the story about a father-daughter relationship. How a father loves but he never shows his love, and a daughter who is expecting her father to spend time with her, to play with her, to talk with her. So how the things resolved? Let's see this in the chapter. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning, before going to work, he came to her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. उस छोटी सी लड़की के लिए he means her father was a figure जिनसे सिर्फ डरा जा सकता है और उनको अवॉइड किया जाना चाहिए. Every morning there was a small interaction between both of them. Before going to the work, her father came to her room. Every morning he came to her room and gave her a casual kiss to say goodbye. And after that he left. और जब वो जाते थे तो उनकी कैरियज की, उनकी गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे कम होती हुई, दूर जाती हुई सुन के शी वॉज क्वाइट हैप्पी. And in the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room." "Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." और शाम को कितना इंटरेक्शन था उनका? As a small interaction again. जब वो घर वापस आते थे, शी यूज टू स्टैंड बाय स्टेयरकेस, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और वो सुनती थी उनकी ज़ोर से आवाज़ कि वो कहते थे मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आइए, और अभी तक पेपर नहीं आया, मीन्स न्यूज़पेपर. और वो अपनी मदर को कहते थे, मीन्स केजियाज़ ग्रैंड मदर, कि आप देखो मेरा पेपर बाहर तो नहीं है, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, ये केजिया से कहते थे. दिस वॉज फॉर केजिया. Paragraph 2. Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. Now her mother used to call her, कि Kezia, if you are a good girl, then come down, नीचे आ जाओ, and take off your father's boots, अपने फादर के शूज़ निकालिए और प्रोसीड, आगे काम करिए. तो वो स्लोली नीचे आती थी हॉल में, एंड शी ओपन द ड्राइंग रूम डोर. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट her over them in a way that was terrifying to the little girl. और इस वक्त तक, जब तक वो पहुंचती थी, उनके फादर अपने चश्मे पहन चुके होते थे और उसकी तरफ ऐसे देखते थे कि वो डर जाती थी. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" "I don't know, father." अब वो थोड़ा सा इससे कुछ बोल रहे हैं.
जल्दी करो केजिया, मेरे शूज़ निकालो, इनको बाहर ले जाओ, आज तुम अच्छी लड़की बनी, मीन्स तुमने कुछ शैतानी तो नहीं की, कुछ ऐसा तो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था. एंड शी अगेन स्टार्टेड स्टैमरिंग. शी यूज टू स्टैमर ओनली इन फ्रंट ऑफ हर फादर, अदरवाइज शी वॉज नॉर्मल. अपने फादर के सामने डर से वो हकलाने लगती थी, अटक कर बोलने लगती थी. You don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to doctor. अगर तुम इसी तरीके से हकलाओगी, अटक के बोलोगी, तो मेरी मदर यानी कि तुम्हारी दादी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father. वो सिर्फ अपने फादर के साथ हकला के बात करती थी, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. क्योंकि उस वक्त उनसे बात करते वक्त उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी बोलने में, डर के बात करती थी. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड फॉर. रेच्ड मीन्स अनहैप्पी, वरीड. उसके फादर ने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, इतनी अनहैप्पी क्यों दिख रही हो. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. और फिर वो अपनी मदर से कहते थे कि इसको प्लीज़ सिखाओ कि ये इतने चुपचाप और परेशान ना रहा करे. ऐसा लगता है इसको देख करके कि शी इज़ अबाउट टू कमिट सुसाइड. और इसके बाद वो केजिया से कहते थे कि मेरा चाय का कप टेबल पर रख दो केयरफुली. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन. यॉन मीन्स मुंह खोल के जब हम जंबाई लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यॉनिंग. तो अब केजिया के अकॉर्डिंग उनका डिस्क्रिप्शन कैसा था, वो बहुत बड़े थे, उनके हाथ, उनकी नेक, स्पेशली उनका माउथ. जब वो जंबाई लेते थे, मुंह खोलते थे, तो उनका माउथ बहुत बड़ा सा लगता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. और जब अकेले में उनके बारे में सोचना होता था तो ऐसा लगता था जैसे हम किसी जायंट के बारे में सोच रहे हैं. पैराग्राफ 4. ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. संडे आफ्टरनून्स को, संडे की दोपहर जब ऑफ होता था, इनके ग्रैंडमदर, केजिया की ग्रैंडमदर उनको ड्राइंग रूम में भेजती थी सो दैट कि वो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी बात कर सकें, ओपन अप हो सकें, मिक्सअप हो सकें. लेकिन जब भी ये लड़की जाती थी तो इनकी मदर कुछ पढ़ रही होती थी, रीडिंग कर रही होती थी, और फादर सोफ़ा के ऊपर स्ट्रेच्ड आउट मीन्स लेटे होते थे, और उनका हैंकरचीफ उनके फेस पे होता था, और उनके पैर के नीचे एक बेस्ट सा कुशन, सबसे अच्छा सा कुशन, और वो सो रहे होते थे बहुत ही आराम से और खर्राटे लेकर. उनको सोना पसंद था, उनको कुशन्स बहुत पसंद थे. Page number 34. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. वो चुपचाप एक स्टूल पर बैठ जाती थी और ध्यान से अपने फादर को देखती रहती थी. कब तक? जब तक वो जाग नहीं जाते थे. और स्ट्रेच मीन्स सोकर उठने के बाद हम अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, जिसको कहते हैं अंगड़ाई लेना. और वो फिर अंगड़ाई लेकर के टाइम पूछते थे. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. और इसको कहते थे कि केजिया ऐसे देखो मत, तुम एक छोटा सा ब्राउन कलर का आउल लगती हो. यू आर लुकिंग लाइक एन आउल. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. एक दिन
जब उसको थोड़ा ज़ुकाम था और उसको कमरे के अंदर रखा गया था, उसकी ग्रैंडमदर ने बताया कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है। बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। और उसको सजेस्ट किया कि उनके लिए एक पिन कुशन बनाओ उनके गिफ्ट के लिए, और एक ब्यूटीफुल सा येलो सिल्क का पीस है, उससे तुम उनके लिए एक अच्छा सा पिन कुशन बनाओ। पैराग्राफ 5, laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with, that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for a scrape. On the bed table she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. अब बहुत मेहनत से, लेबोरियसली मीन्स बहुत मेहनत से, डबल कॉटन लगा करके उसने एक पिन कुशन तैयार किया, जिसको उसने 3 साइड से स्टिच कर दिया, स्टिच मीन सिल दिया। लेकिन उसके अंदर क्या डालें, अंदर क्या फिलिंग करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। शी सर्च्ड अबाउट, तो ग्रैंड मदर वॉज बिजी इन गार्डन, वो गार्डन में बिजी थी, और फिर वो अपनी मदर के रूम में चली गई। वहाँ पर उसने देखा कि काफ़ी सारे फाइन पेपर्स मीन्स अच्छे से पेपर्स उनके बेड टेबल पर रखे हुए थे। उसने उनको गैदर किया, इकट्ठा किया, टोर देम अप, उनको फाड़ा इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में, और स्टफ्ड हर केस, उसको भर दिया उस केस में जिसको उसने 3 साइड से सिला था, और फिर 4th साइड भी उसने टक कर दिया, सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in your room. In our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. और शी वॉज फिनिश्ड, उसने पिन कुशन बना लिया था। लेकिन उस रात को घर के अंदर एक हंगामा मचा हुआ था, बहुत ज़्यादा शोर था, गुस्सा था। हुआ क्या था, देयर वॉज अ प्रॉब्लम। उनके फादर ने पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक स्पीच तैयार की थी, बहुत अच्छी सी, और इट हैज़ बीन लॉस्ट, वो खो चुकी थी। हुआ क्या, nobody knows. Everyone is searching. Rooms were searched. रूम्स में ढूंढा गया, सर्वेंट्स से पूछा गया, लेकिन फाइनली उसकी मदर केजिया के रूम में आई एंड शी सेड, शी आस्क्ड कि केजिया, मुझे उम्मीद है कि तुमने वो पेपर्स नहीं देखे होंगे जो हमारे रूम में टेबल पर रखे थे। एंड शी सेड कि हाँ देखे थे, ओ यस, और मैंने उनको फाड़ कर, आई टोर देम अप फॉर माई कुछ सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ लिया था अपने सरप्राइज के लिए। शी स्पोक द ट्रूथ, उसने सच बता दिया। नाउ हर मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग, वॉट, चलो नीचे आ जाओ डाइनिंग रूम में। Paragraph 6, and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. अब उसको घसीट कर, ड्रैग्ड मीन्स ज़बरदस्ती नीचे लाना, उसको वहाँ लाया गया जहाँ उसके फादर पेसिंग टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे बार बार टहल रहे थे। उनके हाथ उनके बैक पर थे पीछे, और उन्होंने तेज़ आवाज़ में उससे पूछा, वेल, तो उनकी मदर ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन ही स्टॉप्ड हर, और उसकी तरफ ज़ोर से गुस्से से देखा। क्या ये तुमने किया? डिड यू डू दैट? शी सेड नो, धीरे से उसके मुंह से आवाज़ निकली, जस्ट बिकॉज शी वॉज एफ्रेड। अब उन्होंने कहा कि मदर, आप ऊपर जाओ रूम में और वो चीज़ ले आओ। उन्होंने कुछ मंगाया
और आप देखो कि इस बच्चे को बेड पर बिठा दिया जाए अभी, राइट नाउ, ही ऑर्डर्ड. So this is all for today. We'll meet in next class with rest of the chapter. Till then, goodbye and take care.